ایک خواب دیکھا تھا جدوجہد نے جس کو تعبیر بخشی، مگر اس تعبیر میں جانے کتنے کرداروں نے نقب زنی کی۔ 77 سال بیت گئے، غیر تو غیر ٹھہرے، اپنوں نے بھی ہوس اور لالچ کا شکار ہو کر اس تعبیر کے حسن کو گہنا دیا، مگر راکھ میں دبی چنگاری شعلہ بننے کو ہمیشہ بےتاب رہتی ہے۔ اندر سے ایک آواز ابھرتی ہے، خود سے سوال کرتی ہے، اور پھر کئی آوازیں جواب بن کر تعبیر کی کرچیوں کو جوڑنے لگتی ہیں۔ کیا حسین منظر ہے، سبحان اللہ۔ رات کے بعد جب صبح آتی ہے تو اپنے ساتھ ٹھنڈی ہوا اور پھولوں کی خوشبو بھی تو لاتی ہے۔ اچھا کیا میں کمرے سے باہر آ گیا، اگر کمرے کے اندر بیٹھا رہتا تو گھٹن سے میرا تو دم ہی گھٹ جاتا۔ باغوں میں پڑے جھولے۔ ارے تم کیوں اداس ہو؟ اچھا تمہاری کٹنگ بھی کرنی ضروری ہے۔ چلیں اس خوبصورت صبح میں تمہاری کٹنگ بھی کر دیتے ہیں۔ تو آ جاؤ میاں۔ ارے کون ہے بھائی؟ وقار کی آواز لگتی ہے۔ وقار بیٹا آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے بھائی۔ السلام علیکم انکل۔ ارے وعلیکم السلام۔ وقار بیٹا کیا حال ہے تمہارے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کیا لے کر آئے ہو تم؟ وہ بس انکل گھر میں ناشتہ بن رہا تھا، ابو نے بولا انکل کے لیے بھی لے جاؤ تو میں لے آیا۔ تمہارے امی ابو بہت اچھے ہیں، کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں۔ ہاں چلیں اب وہاں رکھیں میز پر، میں ابھی آتا ہوں۔ جلدی آئیے گا انکل، گرم گرم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انکل جلدی آ جائیے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاں بھائی گرم گرم خوشبو تو، ارے بیٹھو 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 بیٹھو۔ خوشبو تو وہاں تک آ رہی تھی، کیا ایسا بنوا کے لائے ہو؟ بس انکل یہ بس بہت شکریہ، میری طرف سے امی ابو کا شکریہ ادا کرنا اچھا ہے۔ انکل ایک بات بتائیں، وہ جو میں نے آپ کو تقریر کا لکھنے کا بولا تھا۔ بیٹا وہ تو میں نے رات کو ہی لکھ دی تھی۔ اچھا ہاں وہ کیا تھا ٹاپک، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، یہی موضوع تھا نا؟ جی انکل آپ کا بہت شکریہ، میں اٹھا لیتا ہوں اور آج ہی اپنے سر کو جمع کروا دوں گا، اور تقریری مقابلے میں جوش و جذبے کے ساتھ پڑھوں گا۔ یہ بات ہے، جوش و جذبے کے ساتھ اگر پڑھو گے نا تقریر بلکہ کرو گے تو پھر دیکھنا جیت بھی تمہاری ہے۔ اچھا انکل مجھے اجازت دیجیے، میں ذرا اسکول کی تیاری کر لیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے اسکول میں ہے۔ اوکے، شاباش، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اللہ حافظ۔ بہت ہی اچھا بچہ ہے، اس کے والدین نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، خدا اس کے وقار کو بلند کرے۔ ارے واہ، روایتی ناشتہ ہے، حلوہ پوری۔
सुल्तान अंकल मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ वकार बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज तो लगता है स्कूल से सीधे इधर आ गए हो। खुशखबरी है अंकल, मैंने सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है भाई? ये देखिए। अरे, ट्रॉफी? ये कहाँ से मिली आपको? ये कहीं से पड़ी हुई नहीं मिली अंकल। हाँ। वो आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने तकरीरी मुकाबले के लिए आपसे एक तकरीर लिखवाई थी? हाँ हाँ। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको भाई, बहुत आपको मुबारक। भी बहुत बहुत मुबारक अंकल। कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद भाई। अरे अरे अरे, ये यहाँ क्यों रख रहे हो बेटा? अंकल इसे यहीं पे रहने दीजिए। अरे नहीं बेटा, इस ट्रॉफी को ले जाओ और फौरन इस खुशी की खबर में अपने अम्मी अब्बू को भी शामिल करो, ठीक है? अच्छा अंकल, फिर मैं ऐसा करता हूँ, शाम में आता हूँ आपके पास। बिल्कुल ठीक है, आप जिस वक्त मर्जी आओ। ठीक चलिए है? ठीक है अंकल। ओके ओके अंकल, खुदा हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला ने इस बच्चे में बड़ी खूबियां रखी हैं। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू नवा। और ये चाय बनाना भी एक फन है। सारी उम्र ना आई तुम्हें चाय बनाना सुल्तान। हाँ, चलें जी, तैयार हो गई चाय हमारी। ओह, अरे यार, इतना गरम पतीली में भूल गया। किधरे ना पेंदियां दसां वे परदेसिया तेरियां। एप्रन को भी उतारना होगा। हमारी गर्दन के लिए ये एप्रन बने ही नहीं है, छोटे गले वाले। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अंकल। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, आओ बैठो। आज तो शाम से भी पहले आ गए। दरअसल अंकल, मैंने अपने अम्मी अब्बू को ट्रॉफी दिखाई तो उनको इतनी खुशी हुई, उन्होंने बोला फौरन अंकल के पास जाओ और उनका शुक्रिया अदा करो। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जब आपके अब्बू और अम्मी आपकी ये जीत और आपकी ये कामयाबी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे और ये ट्रॉफी वहीं ले जाओ। अंकल आपने तकरीर ही इतनी ज़बरदस्त लिख कर दी थी। अरे बेटा, मैंने क्या तकरीर लिखी? मैंने तो माशरे के चंद मनफी किरदारों को बेनकाब किया है उस तकरीर में, और तो मैंने कुछ नहीं किया। ये तस्वीरें देख रहे हो बेटा? जी अंकल, देख रहा हूँ। इन तस्वीरों की ज़ाहिरी मासूमियत और खुश लिबासी पे मत जाओ बेटा। इनके अंदर के आदमी को झांक कर देखो तो तुम्हें एक तारीख और एक भयानक रुख नजर आएगा। वो कैसे अंकल? इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो वकार, ये हैं तुम्हारी तकरीर के वो मनफी किरदार जिस पर तुमने माशाल्लाह एक ज़बरदस्त स्पीच की। तो ये हैं बेटा वो किरदार जिनसे लड़ते लड़ते मैंने अपनी उम्र गुजार दी। डॉक्टर,
प्रोफेसर, सहाफी, इंजीनियर, वकील साहब, जाने कितने सियासतदान, ये हैं डॉक्टर साहब, दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले। बहुत खुश हुए थे उस दिन जिस दिन इनका एडमिशन हुआ था एमबीबीएस में। डॉक्टर बनेंगे, दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे, मगर इन्होंने इंसानों की खिदमत करने की बजाय इंसानों के गले काटे, उनके पेट काटे, उनके घरों के चूल्हे ठंडे किए। प्रोफेसर साहब है ये दूर दराज के कॉलेज और स्कूल में इसलिए नहीं जाते कि इनको दूर पड़ता है, और जिस वडेरे और जिस जागीरदार ने इनको नौकरी दिलवाई थी, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मुलाजमत करते हैं। कॉलेजों में नहीं जाते, वही उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। और फिर जिस कॉलेज में उस्ताद ना हो, प्रोफेसर ना हो, तो उसने तो भैंसों और बकरियों का बाड़ा ही बनना है। सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, बड़ा नाम है इनका। ये जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिसकी चाहें पगड़ी उछाल दें। ब्रेकिंग न्यूज़ लेने के लिए ये झूठ बोलने से भी दरेग नहीं करते, ये खौफ फैलाने से भी दरेग नहीं करते। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपने ग्रुप के लोगों को प्रोजेक्ट करें और अपने अपोज करने वालों की मुखालफत इस अंदाज से करें कि उसे इस जिंदगी में और इस दुनिया में जीने जोगा ना छोड़ें। अरे इस सियासतदान को ही देख लो, ये देखे किस शान से बैठे हैं, किस तरह बराजमान है ये एक कीमती सोफे के ऊपर। क्या इनका रंग है, क्या इनका ढंग है, क्या इनका अंदाज है, क्या इनका लिविंग स्टैंडर्ड है, मगर इनकी सारी जिंदगी झूठ और खोखले नारों पर मबनी रही है। ये सादा लोग और मासूम लोगों को धोखा देते हैं झूठ की सियासत करके। तो बेटा जब इनको कोई ओहदा मिल जाता है, कोई वजारत मिल जाती है, तो फिर इनकी चांदी हो जाती है। कर्ज लेते हैं तो कर्ज का आधे से ज्यादा पैसा अपनी तिजोरियों में भरते हैं। ये है हमारे सियासतदान। अंकल, मैं समझ चुका हूँ कि क्यों आप अपनी तकरीरों में इन मनफी किरदारों के बारे में लिखते थे। मैं जान गया हूँ। शाबाश मेरा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम वक़ार अंकल। वालेकुम अस्सलाम वकार, क्या हाल है बेटा? मैं वक्त पे जा रहा था। अंकल, मैं आज आपके साथ एक अज़्म करने आया। अरे कौन सा अज़्म बेटा? ऐसा अज़्म जिसकी बरसों से आपको ख्वाहिश। मैं आपके ख्वाबों की ताबीर को मुकम्मल करूँगा। मैं आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूँगा। मैं बेनकाब करूँगा उन मनफी किरदारों को जिन्होंने रिश्वत और सिफारिश को आम किया। मैं आपके साथ हूँ। आपकी जिद्दोजहद और मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूँगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और मैं कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारी शक्ल में दे दी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। यहां खजां को गुजरने की भी मजाल न हो। यहां जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, और उसके हुस्न को तशवीश माओ साल न हो।